प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि 18 तारीख से लेकर के 25 जनवरी 2021 तक यूनाइटेड प्रेयर ऑक्टिव वीक मनाया जा रहा है। और हम पासवानों ने सोचा कि कलीसिया के अंदर भी ये प्रेयर रखी जाए, पर हम इसको लिंक के द्वारा कर रहे हैं जिससे कि आप सब इसमें भाग ले सकें। इसके लिए ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं है। हर रोज़ हम केवल आधे घंटे के लिए प्रार्थना का सेशन करेंगे जिसमें प्रार्थना होगी और एक विशेष संदेश दिया जाएगा जो बहुत ही संक्षेप में होगा, जिसको होमिली कहते हैं। इसलिए हमने इसके लिए समय रखा है शाम को 7:30 से 8 बजे तक। डियर फ्रेंड्स, from 18 to 25th of January 2021, we are celebrating the Unity Prayer Octave services. And I hope that we all be blessed as we partake in this. And I, on behalf of the pastoral team of Apostle Methodist Church, welcome all of you to join us. And this will be online every day evening from 7:30 to 8 o'clock. Since it will be in link, you can also watch later on also, but we appreciate if you join us together from 7:30 to 8 p.m. Let us start the worship and prayer for 18th of January. Let's pray. Heavenly Father, we want to thank you and praise you for this time that you have given to us. We thank you, Lord, that even in prayer, Lord, we can meet you because we have a privilege, and Jesus Christ is our high priest who is constantly praying for us in heavenly places, as the word of God says in Hebrews chapter 4 verse 14 to 16, that we have a high priest in Jesus Christ. And as we celebrate this Unity Prayer Octave Week, not only in a country but all over the world, we pray that prepare hearts and mind. Help us as we have this worship for this congregation of Apostle Methodist Church, and be with us and let us find your will. Let us know your will, Lord, and fulfill your will. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि इस आराधना के द्वारा आप हमें मदद करें ताकि हम आपकी इच्छा को जानें और आपकी महिमा अपने जीवन के द्वारा कर सकें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, I like to read just 2-3 verses from the scripture as we start this worship service with a prayer. Psalm 113, Bhajan 113, and I'll read only for this evening, just to start the worship, verses 1 to 3. भजन संहिता 113 1 से 3 पद तक मैं पढ़ूंगा। Praise the Lord, praise, O servants of the Lord, praise the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun to its setting, the name of the Lord is to be praised. यह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सदा सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयचल से लेकर अस्तचल तक यहोवा का नाम, उसकी स्तुति करो, उस स्तुति के योग्य है, आमीन। Dear friends, as we start this prayer week, I like to share few things about today's evening prayer and the importance of it. I like to share a little bit about the introduction, why we have this prayer week. Throughout the Gospels, we see Jesus calling people to become his disciples. हम लोग सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह के उन वचनों को पढ़ते हैं जहाँ वो चेलों को बुलाता है, लोगों को बुलाता है कि उसके चेले बने। Today's Gospel highlights 2 such calls to Jesus by Jesus. आज जो वचन अभी हम सुनेंगे उसमें बुलाहट के बारे में दिया गया है। पहली बात,
the first thing, the call to repentance, and then the call of the first disciple. दो बातें यहाँ पर है। प्रभु यीशु मसीह पश्चाताप के लिए बुलाता है और फिर वो बुलाता है उसके चेले बनने के लिए। The two, repentance and discipleship, are close interrelated as one leads to another. और ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि बिना पश्चाताप के हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य नहीं बन सकते। इसलिए पश्चाताप की बुलाहट और चेले बनने की बुलाहट एक दूसरे के साथ ये जुड़ी हुई हैं। Being a disciple of Christ involves giving up one's old ways, being transformed or born again as a new creation in Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के साथ जब हम चलने की बात करते हैं, उसके शिष्य बनने की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपनी पुरानी बातों को छोड़ दें, हमारा जीवन अंदर से नया हो जाए, जिसको नया जन्म कहा गया है। The invitation to his disciples. Who is a disciple? एक चेला कौन है? In simple words, disciple is a person who can understand as evangelizing oneself by the Holy Spirit or by the power of Holy Spirit. जब हम प्रभु यीशु मसीह के चेले बनने की बात करते हैं, तो जिस प्रकार से उसने हमारे हृदय को छुआ है, सुसमाचार से परिपूर्ण करा है, हम उसके चेले बन करके दूसरों को उसके बारे में बताते हैं। ये शिष्यता का वास्तविक अर्थ है। It is opening our lives to the transforming power of the Holy Spirit, so that every area of our lives reflects the life of Christ. इसके द्वारा हम अपने आप को खोलते हैं ताकि वो हमारे जीवनों को शुद्ध करे और अपनी आराधना के लिए हमें तैयार करे, अपनी सेवा के लिए तैयार करे, और हम अपने जीवन के द्वारा उसके वचन को दूसरों के सामने पहुंचा सकें और उसका वचन हमारे जीवन के द्वारा प्रतिबिंबित हो या रिफ्लेक्ट हो। We know by experience that evangelization or evangelizing oneself is a most difficult task. हम इस बात को जानते हैं कि सुसमाचार का प्रचार जो है बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता से ये संभव है। However, unless and until this happens, we cannot become the disciple of Christ. लेकिन जब तक हमारे जीवन को प्रभु के वचन ने नहीं छुआ है, हमने उसके सुसमाचार को अपने जीवन में आत्मसात नहीं करा है, हम उसके चेले नहीं बन सकते। इसलिए हम इस बात पर गौर करेंगे। अब समय होगा कि हम थोड़ी देर प्रार्थना करें, और प्रार्थना में हमारे अगुवाई करेंगे हमारे पास्टर शरण सावंत, और उसके बाद हम लोग प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। आज का पाठ पाया जाता है जो आपको बताया जाएगा, और उसके बाद हम थोड़ा सा समय देंगे, करीब 8 मिनट तक या 9 मिनट तक, जब हम प्रभु के वचन पर गौर करेंगे। अब हम प्रार्थना में चलें पास्टर शरण सावंत के साथ। Let us pray. Thank you, dear gracious Heavenly Father, for the wonderful time that you have given us, Lord, and we are very thankful to you for the wonderful moment that you added in our lives. And Lord, as we all are in your presence, and thank you for the such wonderful privileges and your grace and for your mercies and your love that you bestowed upon us through Jesus Christ on the cross. And you accepted us as your darling son and darling daughters, Lord. And thank you for the such might and strength that you provided us through the Holy Spirit. Lord, we especially commit, and Lord, we especially pray for this Octave Prayer Festival. Lord, thank you for giving us the such wonderful platform to be united, and for the platform of solidarity that we all come together in your presence, Lord, by upholding others in our prayer. और धन्यवाद देते हैं पिता आज के इस सुंदर समय के लिए जो ये समय आपने हमें दिया। हम प्रार्थना करते हैं हमारे नेशन के लिए, भारतवर्ष के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता तमाम जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन सबों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे जितने भी जो किसान भाई हैं उनके लिए। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग बीमार हैं, जो लोग
हताश हैं, हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ अपना 2020 में खोया, हम उन सभी को अपनी इन दुआओं में याद रखते हैं पिता। और हमारा विश्वास आपके ऊपर है कि आप महान परमेश्वर हैं और जितने भी डिफरेंसेस हैं सबको हटाने वाले परमेश्वर हैं और चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं पिता। आप चंगाई दें और पिता सबको आप महफूज रखें, अपने पवित्रता के बारे में आप संभाल के रखें। डियर गॉड, वी नो दैट you are with us and you fight for us on the behalf of your people. We believe that it's not by might nor by power, but by your spirit that you make a difference in our world. We are needy of you, Lord. Some days we feel so broken, so uncertain. Sometimes we feel in our lives hopeless. And Lord, we are hurting, we are struggling, and we are aware more than ever of our own weakness and of the dark forces that constantly surround us. Fighting to gain ground in our lives and families, we choose to stand our ground today and say no more. Dear God, we ask that you fill us with your spirit of love and unity among believers all across the nation. We ask for your help to set aside our differences and look to the greater cause, the cause of Christ Jesus. We ask that you would help us to truly live a life of love and holiest life. We know that this is only possible through the power of your Spirit. So we pray for your Spirit to move across our land, to move across our nation, to move across our surroundings in fresh ways. Turn your people back to you, Lord. Draw others to come to know you. Thank you that you are always with us to give us great purpose and hope. We pray for our family, we pray for our community, we pray for our churches, we pray for our Christian leaders, we pray every denomination, for every churches of the word, Lord, and we commit them and we commit their needs also unto your feet, Lord. Fulfill them by your might because you are the able God. और परमेश्वर, हम जब इस जो ऑक्टिव प्रेयर मीटिंग है, प्रेयर फेस्टिवल है पिता वीक का, जब हम लोगों के लिए दुआएं करते हैं तो आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में हो और जो कुछ हम मांगते हैं पिता आप अपने दया के अनुसार उसको सुने और ये 2021 हम सब के लिए ब्लेसिंग्स का कारण हो पिता, सब के लिए ब्लेसड हो, आशीषित हो पिता। और आपकी उपस्थिति को हम महसूस करें और इस साल जो हम डेडिकेट करते हैं आपके इवेंजलिज्म के लिए, आपके प्रचार के लिए पिता, ये साल होने दीजिए कि हम सब तैयार हों और आपके आगमन के लिए पिता, जब आपका आगमन होता है तो पिता हम काफ़ी जो सोल्स हैं, जो लॉस्ट सोल्स हैं, जो खोई हुई आत्माएं हैं पिता, उनको हम आपके पास ला सकें और पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलने वाले हों। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना। हमें अपनी एनर्जी से, अपने स्ट्रेंथ से भर दीजिए और पिता होने दीजिए कि बहुत बड़े काम इस प्रेयर फेस्टिवल के दौरान हो जाएं पिता। और सब पासबानों को हम आपके हाथ में देते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मुबारक नाम के मांगते हैं, आमीन। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 35 से लेकर 51 पद तक पढ़ेंगे। इसमें इस तरह लिखा है, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसे यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तब ये दोनों चेले उस सुनकर यीशु के पीछे हो लिया। यीशु ने मुड़कर उसको पीछे आते देखकर उसने कहा, तुम किसको खोज रहे हो? उन्होंने उससे कहा, हे रबी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उन्होंने उससे कहा, चलो और देख लोगे। तब उन्होंने आकर उससे रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे और उसने 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बातें सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक सीमोन पतरस और उसके भाई आंद्रेयास था। उससे पहले कि अपने संग भाई सीमोन के से मिलकर उसे कहा, हमने
ख्रिस्त अर्थात मसीह को मिल गया। उन्होंने उसे के पास आया और यीशु ने उससे दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र सिमोन है, अर्थात तू कैफास अर्थात पतरस कहलाएगा। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा और फिलिप्पुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। फिलिप्पुस ने अंद्रयास और पतरस के नगर बेथसदा का निवासी था। फिलिप्पुस ने नथानियल से मिलकर उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया था, वो हमने मिल गया है, अर्थात यीशु का पुत्र यीशु नासरी। नाथानियल ने उसे कहा, क्या कोई अच्छे वस्तु भी नसरत में निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उसे कहा, चल कर देख ले। यीशु ने नाथानियल को अपने ओर आते देखकर उससे विषय में कहा, देखो ये सचमुच इजरायली है, अर्थात कपट नहीं है। नाथानियल ने उसे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उससे उत्तर दिया, इससे पहले कि तू फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया तब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नाथानियल ने उसे उत्तर दिया, हे रबी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा था कि मैं तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या इसीलिए तू इज़राइल विश्वास करता है कि तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा? फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तू स्वर्ग को खुलते और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को उतरते और मनुष्य के पुत्र को उतरते देखोगे। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने पर बहुत ऐसे आशीष दे। प्रिय मित्रों, हम लोग इस समय थोड़ी देर के लिए प्रभु के वचन पर गौर करेंगे। डियर फ्रेंड्स, फॉर सम टाइम वी विल नाउ मेडिटेट अपॉन द word of God that has been read to us. Today, first day, that is 18th of January 2021, Monday, and today the theme is called by God. आज इस प्रार्थना का पहला दिन है और आज का जो थीम है वह है परमेश्वर के द्वारा बुलाया जाना। The start of this journey is an encounter between a human being and God, between the created and the creator, between time and eternity. मित्रों, ये जो आज का विषय है ये बहुत ही व्यापक और सारगर्भित है, जहाँ पर हम ईश्वर के द्वारा मनुष्य के बुलाहट की बात के बारे में पढ़ते हैं। वो जो बनाने वाला है अपनी सृष्टि को बुलाता है, मानव जाति को बुलाता है। वो जो अनंत है उनको बुलाता है, जो समय के घेरे में रखे गए यानी मनुष्य प्राणी। अब्राहम हर्ड द कॉल, और हम इसके बारे में पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय 1 से 4 पद। रीड अबाउट द कॉल ऑफ अब्राहम in the book of Genesis chapter 12 verses 1 to 4. And God said to him, go to the land I will show you. तू उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। Like Abraham, we are called to leave that which is familiar and go to the place that God has prepared in the depths of our hearts. परमेश्वर हमें बुलाता है जिस प्रकार से उसने अब्राहम को बुलाया कि हम उस जगह को जाएं, उस स्थान को जाएं जो परमेश्वर ने हमारे हृदय के अंदर रखा है कि हम वहाँ पर उसकी सेवा करें, ये उसके गवाह बने। Along the way we become more and more ourselves, the people God has wanted us to be from the beginning. And by following the call that is addressed to us, we become a blessing for our loved ones, our neighbors and the world. परमेश्वर की बुलाहट को जब हम उसके प्रति प्रत्युत्तर देते हैं तो हम अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए
और अपने संसार के लिए आशीष बन जाते हैं। द लव ऑफ गॉड सीक्स अस। God became human in Jesus Christ, in whom we encountered the gaze of God. In our lives, as in the gospel of Jesus Christ, John says, God's call is heard in different ways. परमेश्वर के बुलाहट के बारे में यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है, और निश्चित रूप से अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से ईश्वर की बुलाहट को सुनते हैं। टच बाय हिज लव वी सेट आउट। वो हमें अपने प्रेम से स्पर्श करता है और हमें संसार में भेजता है। इन दिस एनकाउंटर वी वॉक ए पैथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, द ब्राइट बिगिनिंग ऑफ ए रिलेशनशिप ऑफ लव दैट इज ऑलवेज स्टार्टेड अ-न्यू। परमेश्वर की बुलाहट हमारे लिए है। जब हम उसको सुनते हैं, उस पर प्रत्युत्तर देते हैं, तो परमेश्वर हमें एक नई बुलाहट के साथ, एक नई शुरुआत के साथ अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। यहाँ पर कुछ लाइन्स मैं पढ़ना चाहूँगा जो कहीं से लिखा गया है। वन डे यू अंडरस्टैंड दैट विदाउट योर बीइंग अवेयर ऑफ इट, ए यस हैड ऑलरेडी बीन इंस्क्राइब्ड इन योर इनरमोस्ट डेप्थ्स, एंड यू चूज टू गो फॉरवर्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ क्राइस्ट। एक दिन हम इस बात को महसूस करेंगे कि परमेश्वर ने उस बुलाहट की आवाज़ को हमारे हृदय में लिख दिया था। जब हम उसकी आवाज़ को सुनेंगे और प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्ह पर चलेंगे। इन साइलेंस इन द प्रेजेंस ऑफ क्राइस्ट यू हर्ड हिम से, कम फॉलो मी, आई विल गिव यू ए प्लेस टू रेस्ट योर हार्ट। और जब हम संक्षेप में आकर अपने हृदय के अंदर शांत होकर के उसकी आवाज़ सुनते हैं, तो वो हमें ये कहता सुनाई देता कि मैंने तुम्हें बुलाया है और तुम्हें वो जगह दी है जहाँ तुम अपने लिए शांति पाओगे और दूसरों के लिए आशीष का कारण होगे। मित्रों, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, वचन के लिए। एक छोटी सी प्रार्थना है जो मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगा आप सबों के लिए, मेरे लिए भी। जीसस क्राइस्ट, यू सीक अस, यू विश टू ऑफर अस योर फ्रेंडशिप and lead us to a life that is ever more complete. Grant us the confidence to answer your call, so that we may be transformed and become witnesses of your tenderness for the world around us. इस समय हम एक गीत गाएंगे, और आज का जो गीत है अंग्रेजी में है, जिसको हम पाते हैं हमारे इंग्लिश हिम्नल में, गीत संख्या 39 नंबर गीत हम गाएंगे और अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। Wondrous
Son and Him who reigns with heaven highest heaven, the one eternal God, whom earth and heaven adore. For thus it was, is now, and shall be evermore. Now we'll have the prayer and benediction, and we like to appreciate all of you for attending this worship service. May God bless all of you. And tomorrow we'll meet at the same time, that is 7:30 p.m. for the second day of Unity Prayer Octave service. Let's pray. Heavenly Father, we want to thank you and praise you for this wonderful time that you gave us to spend some time in prayer. We heard your words, Lord. We heard from your word, and you have spoken to us, Lord, that we need to follow you. स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया, और हमने आपकी आवाज़ सुनी कि हमें आपके साथ चलना है। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन दे जो आपको प्रसन्न कर सकें। आज की आराधना के लिए, प्रार्थनाओं के लिए आपका धन्यवाद हो। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। And now let us all stand and have the benediction. अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रोल कुदुस की इफाकत